بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آصف ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ بھائیوں کے ساتھ بریڈنگ کے حوالے سے انڈے سے لے کر چوزا جوان ہونے تک میں انشاءاللہ ساری انفارمیشن آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ آگے بریڈنگ کا سیزن آ رہا ہے۔ اس حوالے سے ویڈیو بنائی ہے تو ویڈیو آپ بھائیوں نے اینڈ تک دیکھنی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا ہے۔ اب بھائیوں کا ٹائم ضائع کیے بغیر بھائیوں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے بھائیوں کی فرمائش تھی ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ، لیکن بھائیوں اصل میں ابھی مارچ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو میں نے سوچا چلے اب آگے بریڈنگ سیزن آ رہا ہے تو اس حوالے سے آپ بھائیوں کے ساتھ یہ ضروری انفارمیشن شیئر کرنی تھی۔ تو بھائیو ایگ سے سٹارٹ کریں گے ہم انشاءاللہ، اور چوزے جوان ہونے تک جتنی بھی ہم خوراک وغیرہ دیتے ہیں اور جو کیئر میں خود کرتا رہتا ہوں اس حوالے سے آپ بھائیوں سے میں یہ انفارمیشن شیئر کروں گا۔ تو بھائیو ایک تو یہ کوشچن پوچھتے رہتے ہیں کافی سارے بھائی کہ انڈے فریج میں خراب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو سردیوں میں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا، آپ باہر رکھ لیں یا فریج میں رکھیں، اور گرمیوں میں بھی بھائیو اگر آپ انڈے جو ہیں وہ فریج میں رکھیں تو اس سے آپ کے انڈے کی فرٹیلٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ بے شک انڈے فریج میں رکھیں، اور سردیوں کی سیزن میں فریج میں رکھتے ہیں یا باہر رکھتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ میں جتنی بھی بریڈنگ کراتا ہوں بھائیو سارے انڈے فریج میں ہی رکھے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے بھائیو کہ جب انڈے آپ فریج سے نکالیں تو کم از کم سردیوں میں 6-7 گھنٹے باہر رکھیں اور گرمیوں میں 1-2 گھنٹے باہر پہلے نکال لیں، تو انڈوں پہ تھوڑی دیر بعد نمی آ جائے گی اوپر، تو وہ آپ لوگوں نے خشک کر لینی ہے اور ایگز کو مرغی کے نیچے رکھیں انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ فرٹیلٹی کا جو ایشو ہے وہ تو آپ کے مرغا اور مرغی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا فریج سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں آپ نے اوپر فریزر والی جگہ پہ نہیں رکھنا، فریز نہیں کرنا ایگ کو، نیچے جو فریج والی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر آپ ایگز رکھ لیں تو کوئی ایشو آپ کو نہیں آئے گا۔ یہ تو ہو گیا ایگز کے حوالے سے بھائیو۔ پھر آپ لوگوں نے جب مرغی کو انڈے رکھیں تو جگہ کا بڑا خیال رکھنا ہے آپ بھائیوں نے کہ گرمیوں میں تھوڑی سی ٹھنڈی جگہ ہو، جیسے نیچے ریت وغیرہ ہو، اور جہاں مرغی بیٹھے تو وہاں بہت زیادہ گرمی نہ ہو، اور سردیوں میں آپ بھائیوں نے گرم جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے، مطلب نیچے آپ بھوسا وغیرہ بھی ساتھ ڈال لیں مٹی میں تو وہ مناسب رہے گا۔ بعض بھائی یہ کوشچن کرتے رہتے ہیں کہ مرغی جو ہے وہ انڈے پی جاتی ہے، تو بھائیو ایسی مرغی کا یا تو یہ پرابلم ہوتا ہے بھوک پیاس کی وجہ سے بھی پی لیتی ہے انڈے۔ تو آپ بھائیوں نے کیا کرنا ہے بھائیو، یہ جو بھی مرغی آپ ایگز پہ بٹھائیں تو ڈیلی کے بیس پہ اس کو خود اٹھائیں انڈوں سے اور باہر لے آئیں اور باجرہ پانی وغیرہ پورا کر دیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرغی زیادہ مشکوک ہے تو گرمیوں کے سیزن میں، سردیوں میں نہیں، گرمیوں کی سیزن میں آپ اس کو بے شک پانی کے لیے 2 مرتبہ اٹھا لیں، خوراک ایک ٹائم دے دیں اور پانی کے لیے 2 مرتبہ، 5-10 منٹ اٹھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا بھائیو انڈوں کو۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو مادی ہوتی ہے وہ انشاءاللہ انڈے پینا بند کر دے گی۔ اس کے علاوہ بھائیو آپ کافی سارے بندہ ایگز رکھتا ہے، کوشش یہی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ بریڈ ہو جائے، تو آپ لوگوں نے 5 سے 6 دن ایگز میں وہ فرٹیلٹی وغیرہ بھی چیک کر لے وہ روشنی لگا کے، تو جو انڈے خراب ہوں اس کو باہر پھینکتے، تھوڑے انڈے کم ہو جائیں گے تو اس سے بھی مرغی تھوڑی ایزی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس مرغیاں کم ہیں اور بریڈنگ بہت زیادہ کرانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ جب تینوں مرغیاں ایک ساتھ کڑک ہو جائیں آپ ایک دن میں ان کو بٹھا دیں، اور پھر جب چکس نکل آئیں تو کسی ایک مرغی کے ساتھ کر لیں۔ لیکن اس میں ایک پرابلم آپ کو ہوگی بھائی، جب ایک مرغی کے ساتھ چوزے بہت زیادہ ہوں گے تو پھر آپ کو اس کو جگہ کافی کھلی دینی پڑے گی۔ اگر آپ اس کو کھڑے میں رکھیں گے تو بعض چوزے مرغی کے نیچے آتے ہیں، ادھر ادھر وہ کیئر نہیں کر سکتی تو مر جاتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے، اس کے بعد اگر آپ لوگ یہ مینٹین کر سکتے ہیں تو وہ کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ تو بھائیو یہ آ گیا ایگز کے حوالے سے کہ آپ نے مرغی کس طرح سے بٹھانی ہے اور ایگز کو پہلے مطلب آپ نے کیسے پریزرو کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ بھائیو یہ ہے کہ ایگز آپ کے 15-20 دن سے زیادہ پرانے نہ ہوں، یہ کوشش کر لیں اس دوران ہی آپ ایگز رکھ لیں۔ 25-30 دن والے بھی چل جاتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ 15 دن یا اس سے کم دنوں والے فریش ایگز آپ لوگ رکھیں، وہ زیادہ مناسب رہتا ہے۔ اچھا بھائیو یہ تو آ گیا ایگز کے حوالے سے۔ اس کے بعد بھائیو آپ لوگوں نے
जब चिक्स निकल आते हैं तो पहले दिन आप लोगों ने ये करना है कि गुड़ वाला पानी पिला दें आप उनको। तो उससे ये होगा कि आपके जो चिक्स होंगे उनकी फ्लशिंग वगैरह हो जाती है, तो उससे भी सेहतमंद होते हैं। अच्छा, जो भाई स्पेशली छतों पे शौक करते हैं, छत पे जो उनके पास जगह कम होती है, तो भाइयों अगर आप लोग खुले में रखते हैं चीज़ों को और आप छत वगैरह पे रखे हैं, आपके पास नेचुरल स्पेस नहीं है, तो आप भाइयों ने क्या करना है कि चीज़ों को जब इस तरह के मौसम में तब्दीलियां आए, जैसे बारिश हो जाती है सर्दियों में स्पेशली, बाहर के मौसम में भी जब बारिश हो जाती है तो ठंड पड़ जाती है, तो ऐसे चेंजिंग वाले दिनों में आप लोग चीज़ों को बाहर ना निकालें खुदों से, आप कोशिश करें वो अंदर ही रहें, वहीं पर उनको खुराक दें लाइट वगैरह लगा के। तो इससे ये होगा कि आपकी चीज़ें बीमार कम होंगे। बाकी जिन भाइयों के पास नेचुरल जगह है वो भी ख्याल करें कि आप लोग बारिश वाले दिन ऐसे जहाँ जब मौसम में तब्दीलियां आ रही हों तो आप उन दिनों चीज़ों को बाहर कम निकालें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब आ जाते हैं भाइयों खुराक के हवाले से। तो जिन भाइयों के पास नेचुरल स्पेस हैं, जिस तरह के आप साइड गांव एरिया में चले जाएं, बड़े बड़े डेरे होते हैं, और स्पेशली अगर आपके पास माल डंगर के या गोबर वगैरह हो उसमें अगर ये फिरते रहते हैं, तो आप भाई क्या करें कि आप कोई भी गज़ा दे दें। जैसे मैं तो ज़्यादा प्रेफर करूंगा कि आप गंदम का दल वगैरह ये पानी थोड़ा सा डाल के उनको गीला करके आप वो दे दें, तो वो ज़्यादा बेहतर है जो नेचुरल जगहों पे रहें। अब आ जाते हैं जिन भाइयों के पास छत वगैरह और ऐसी जगहों पे जो उनको मिट्टी और नेचुरल स्पेस नहीं दे सकते, तो आप भाइयों ने ज़्यादा यही अच्छा रहेगा भाइयों कि आप लोग फीड दे दें। फीड से तो एक ये फ़ायदा होगा कि आपके चूज़े जो हैं जल्दी ग्रोथ भी करेंगे और इनकी जो खुराक है वो भी कंप्लीट होती है, तो चूज़े काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। जो नेचुरल स्पेस वाले हैं वो भी फीड का काम कर सकते हैं, फीड ज़्यादा देंगे अगर आप तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो इनमें आप लोगों ने एक ख्याल करना है भाइयों कि एक फीड आती है, मेडिकेटेड फीड आती है, 14 PS जहाँ पर उसको बोलते हैं, आप हर इलाके में नाम चेंज भी होते हैं। तो आप वो वाली जो गोश्त वाली होती है वो फीड दे दिया करें, तकरीबन 3 महीने भी चला सकते हैं, 4 महीने भी चला सकते हैं, 5 महीने तक भी आप लोग की मर्जी है, आप चला लें, कोई इशू नहीं होता। अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि उससे वो ब्रायलर की तरह बन जाएंगे, तो भाइयों वो नहीं होता, वो एक अलग नस्ल है मुर्गों की जो खाने के लिए बनाई होती है। तो इनको कुछ नहीं होगा, थोड़े से भालू से बन जाते हैं, लेकिन ये होता है कि जब आप फीड खत्म करेंगे उनकी 1 महीना बाजरा खाएंगे तो वो अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। एक और पॉइंट की बात मैं आपको बताऊं फीड के हवाले से, कि आपके मुर्गों जो चूजे होंगे मुर्गे होंगे वो कद अच्छा उठाएंगे उससे, ये आप लोगों ने नोट करना है, मोहरा बहुत अच्छा बन जाता है उससे। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। तो फीड मैं तो ज़्यादा प्रेफ़र फीड को ही करता हूँ। आप भाई को अगर आपके पास नेचुरल स्पेस है तो फिर तो चलें आप कुछ भी दे दें, कोई इश्यू नहीं होता, कोई हार्ड चीज़ें नहीं देनी, बाजरा वगैरह, उससे ये होता है कि सख्त होता है बाजरा, तो उससे पोटा बंद कर लेते हैं चूज़े, तो आपके चूज़े जल्दी मरना शुरू हो जाते हैं, तो ये आप लोगों ने बहुत ख्याल करना है। और सबसे अहम पॉइंट भाइयों, ये आप लोगों को मेरे ख्याल से यूट्यूब और सोशल मीडिया पे कम ही बताया होगा आप लोगों को, और ये पॉइंट तजर्बे का पॉइंट है भाइयों। अगर आप चूजे ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पर आपके बड़े परिंदे हैं, मतलब ब्रीडर मुर्गे और मुर्गियां, वहां आपके चूजों की डेथ रेशो ज्यादा होगी। तो कोशिश आपने ये करनी है कि चूजों के लिए एक अलग स्पेस होनी चाहिए आपके पास, जहां पर चूजे जो हैं वो बड़े जो आपके परिंदे हैं उनके साथ मिक्स ना हो। अब होता क्या है कि जहां पर ज्यादा परिंदे होते हैं, बड़े परिंदे, तो छोटी मोटी नजला जुकाम ऐसे किस्म की छोटी मोटी बीमारी हर टाइम रहती है उनमें, किसी न किसी परिंदे में होती है। तो बड़े जानवर ये होते हैं कि वो तो सस्टेन कर लेते हैं छोटी मोटी बीमारी का, उनको कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जो चूजे होते हैं वो ज्यादातर बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। तो आप ये चूजे जो हैं आप अलहदा रखेंगे तो वो ज्यादा ग्रोथ करेंगे और आपकी डेथ रेशो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ये एक बड़े पॉइंट की बात है भाइयों, इस पे अगर आप लोग अमल करेंगे इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मालूम होगा। अच्छा, आ जाते हैं खुराक पे। तो आप भाइयों ने फीड देनी है और फीड को भी थोड़ा सा आप लोगों ने एक मिकदार रख लेनी है कि आपको समझ आ जाए मेरे चूजे इतना खाते हैं, उस मिकदार को आपने पानी से थोड़ा सा गीला करके तो आप वो दे दें उनको, तो वो उससे ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ करते हैं आपके चूजे। अब एक और प्रॉब्लम आ जाती है भाइयों कि फीड के साथ आप लोगों ने ख्याल करना है कि डिवॉर्मिंग भी जरूर करनी है साथ साथ, क्योंकि इससे कीड़े ज्यादा पैदा होते हैं चूजों के पेट में।
तो आपने क्या करना है कि जब चूज़ों को आप फीड रेगुलर दे रहे हो तो तकरीबन 1.5-2 महीने बाद आप लोग कर लें उसकी डिवॉर्मिंग, और जब आप फीड ख़त्म करें तो उस वक़्त आपने ज़रूर डिवॉर्मिंग करनी है। एक मर्तबा आखिरी बार डिवॉर्मिंग करके आप लोगों ने उसके बाद फीड ख़त्म करानी है। अब फीड ख़त्म कराने का तरीका क्या है भाइयों, कि एकदम से अगर आप फीड ख़त्म करके बाजरा डालेंगे तो उससे भी आपकी चीज़ें ख़राब होंगे। तो आप भाइयों ने क्या करना है कि पहले फीड में थोड़ा-थोड़ा बाजरा मिक्स कर लेना है, या जो भी आप खुराक देते हैं मिक्स दाना वगैरह, वो थोड़ा-थोड़ा रेशो उसमें बढ़ाते जाएँ, और करते-करते एंड पे जब तकरीबन ये प्रोसेस आपका 20 से 25 दिन का होना चाहिए, करते-करते बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि फीड से जब आप चूज़ें निकालें तो पहले मिक्स दाना पे डाल लें। मिक्स दाना पे डाल के, तो अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, काफ़ी महंगा होता है मिक्स दाना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप बाजरा गंदम वगैरह जिस पे भी लाते हैं आप ले आए उनको। और इसमें डिवर्मिंग आप लोगों ने ज़रूर करनी है। जब आप फीड से निकालेंगे चूज़ों को, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ेंगी, तो इसका बहुत ख्याल रखना है। बीमार अगर होंगे तो बीमारी का भी ख्याल रखना है। और ये चीज़ें, ये टोटल 10-15 दिन होते हैं जिसमें ये ज़रा ज़्यादा केयर करनी होती है, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपकी चीज़ें बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे और नॉर्मल खुराक पे आप पे आ जाएंगे। आज़ादी उसके बाद ज़रूर देनी है आप लोगों ने, जब आप फीड ख़त्म करें, ताकि वो जो फीड वाला थोड़ा बहुत वो प्रॉब्लम होता है वो भी आपकी चीज़ों में हल हो जाए। और इसके बाद भाइयों आप लोगों ने, बेशक आप नेचुरल बायर उसको खुला फेरे खुले में रखते हैं तो वो आपके उस तक है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा ये होना चाहिए कि आपके जो परिंदे हैं भाइयों, ये ओपन स्पेस में जितने ज़्यादा होंगे तो वो उतनी अच्छी ग्रोथ भी करेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस आप भाइयों को देंगे। इसके अलावा भाई कुछ भाई इंक्यूबेटर और ब्रूडर के वाले से भी पूछते रहते हैं। तो इंक्यूबेटर में भाइयों मैंने जितना नोट किया है तो उसमें ज़्यादातर आप जब ब्रीडिंग करवाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स ये भी आ जाती हैं कि कुछ टेढ़े-मेढ़े से चूज़े आना शुरू हो जाते हैं। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पता नहीं ये क्या वजह है। लेकिन तजुर्बे से यही है कि मैंने देखा है कि इंक्यूबेटर से ज़रा जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसके बाद उनकी केयर भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैं तो आप भाइयों को प्रेफ़र करूँगा कि आप मुर्गी के नीचे अंडे रखें, मुर्गी ज़्यादा अच्छे से केयर करती है चीज़ों की। अगर आपके पास असील मादियाँ कम है तो कोई और से आप लोग मादियाँ अरेंज करके चूज़े-शूज़े करा के तो मादी बेशक आप खा लें, और नहीं तो आगे पीछे दे दें किसी को, तो वो ज़्यादा अच्छा प्रोसेस है। बाकी इंक्यूबेटर और ब्रूडर भी ठीक है, वो उससे भी आप लोग ब्रीडिंग करवा सकते हैं। अच्छा, एक और टिप आपको ये भी मैं बता दूँ भाइयों, कि जब महीने 2 के आप चूज़े हो जाएँ आपके, तो उनके जो पर हैं वो आप आधे-आधे काट लें। अब मुझे ये नहीं पता कि इससे प्रोसेस क्या होता है, कि इससे चूज़े क्यों अच्छी ग्रोथ करते हैं, लेकिन ये तजुर्बे की बिना पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप उनके पर काट लेते हैं, तो उससे आपके चूज़े ग्रोथ बहुत अच्छी करते हैं। एक तो हमारे लोकल ये भी कहते हैं कि ज़रा चूज़े बुरे-बुरे लगते हैं तो नज़र भी नहीं लगती, पर-शर उड़े होते हैं। वो भी एक बात कह सकते हैं, लेकिन ये है कि मुझे इसका मेडिकली प्रोसेस नहीं पता कि पर काटने से आखिर वो क्या तब्दीलियाँ होती हैं जिससे चूज़ा ग्रोथ अच्छी करता है। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि जब आप उनके पर काट लेते हैं तो ग्रोथ अच्छी कर लेता है। बाकी अगर किसी भाई को पता है, अगर कोई उस्ताद हज़रात इसको देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो वो ज़रूर बता दीजिएगा कि पर काटने से आखिर वो कौन सा प्रोसेस है कि चीज़ों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। एक और चीज़ होती है भाइयों के 10-15 दिनों में बाद भाइयों आपने चीज़ों में जुएँ वगैरह हो जाती हैं, या हम जेवियाँ भी बोलते हैं, वो छोटी-छोटी ब्लैक वाली, आप जो भी उसको बोलते हैं, उनका भी ख़्याल रखना है। अगर वो हो जाती हैं तो टाइगर पाउडर मिलता है या कूपेक्स पाउडर मिलता है, कोई भी आप लोगों को वो जो लाल बेग वगैरह मारने के लिए मिलता है, तो वो आप लोगों ने उनमें डाल लेना है, तो इंशाअल्लाह उससे मर जाएँगे। एक चीज़ आपने ख़्याल रखना है कि वो कोबरा वाला स्प्रे नहीं कर देना, उससे काफ़ी बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, वो काफ़ी तेज़ होता है। तो ये जो आप जो पाउडर वगैरह मिल जाते हैं लाल बेग वगैरह के लिए, तो वो आप यूज़ कर लें, तो उससे ये होगा कि इंशाअल्लाह ये प्रॉब्लम्स भी नहीं आएँगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी भाइयों, आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा भी जो बातें मेरे ज़हन में आएँगी तो इंशाअल्लाह वक़्तन-फ़वक़्तन आप भाइयों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। बीमारियों के हवाले से एक अलहदा टॉपिक होगा, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो इसके साथ कवर करना मुश्किल हो जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो फिर इंशाअल्लाह उस पे अलहदा से टॉपिक पे बनाऊँगा मैं। तो एक आप भाइयों ने टेम्परेचर का भी बड़ा ख़्याल रखना है चीज़ों का, वो भी मेंटेन रखना है। तो वीडियो आप भाइयों को कैसी लगी इस हवाले से ज़रूर बताना है।
اور کمنٹ سیکشن میں آپ بھائیوں نے بالکل آپ لوگوں نے کنجوسی نہیں کرنی. آپ نے میری نیچے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا میں تقریباً ہر کمنٹ کا رپلائی کرتا ہوں. تو کمنٹ میں آپ لوگوں نے لائک کرنے میں اور شیئر کرنے میں بالکل کنجوسی نہیں کرنی. اور اگر آپ کو چینل اچھا لگتا ہے، ویڈیو اچھی لگتی ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے، تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا. اللہ حافظ.